students, today's our topic is related with again pandas data frame. In this topic we will see one more way of creation of a data frame, and that is with the list of dictionaries. So first we should understand what is the meaning of list of dictionaries here. For understanding it, I am here creating a list of dictionary. As you know, list is created in big brackets. So if we want to create a list of dictionaries, so in a list there should be at least 2 dictionaries for explaining it. Or you can say there may be one dictionary, but it should be in the list. So in a list I am creating a dictionary, and if my first dictionary contains first key is A, another is its value 0, and B, this is our second key in our dictionary, and this is its value. So this much area, this becomes one dictionary. So if I take one more dictionary here, C colon, and its value, for example 2, and now D colon 3, so this becomes another dictionary. And if I close here big bracket, then it becomes a list. See, if you want to check the type of L, then it will give list, but in this list I have taken 2 dictionaries. If you print L, it becomes a simple list. You can also create such list by saying this. For example, if I say D1 is a one dictionary in which I have taken A colon 0 and B colon 1, this becomes my one dictionary. So even if you check type D1, then it becomes dictionary. Another, you have taken one more dictionary D2, but in this case you have taken C and D with the values 3 and 4. So this is also your dictionary D2. So if you want to create a list with these 2 dictionary, you can also write by saying L equals to in big bracket D1 comma D2. So now you have created a list of dictionary. I have explained here 2 ways to create list of dictionaries. One way was by directly creating a dictionary in the list, and second way I have explained here. First I have created one dictionary, another D2 dictionary, and then I have used D1 and D2 to create a list. So if we want to create a data frame from this list of dictionary, then we can create, for example, for creating a data frame, we know there is a function data frame, pd.data frame. So for using it, we should say import pandas as pd. First of all, you need to import the pandas, then you can say pd.data frame, or you can use the pd.data frame function. So if I say df equals to pd dot data frame in small bracket and L I have passed here L. What is L? I have explained it here that L is a list of dictionary. So if you see, your data frame is created as such, in which the keys that you have provided in the dictionaries becomes the columns of the data frame, and the 0 1 becomes its by default row index. And see, for A it is showing 0 0, for B it is showing 1 0, but for C it is showing nan, means there doesn't value there is no much value found for this row, for
mentioning it here, so it is giving here nan. So if you want to better understand it, I am giving one more example, then you will be able to understand what here nan is. Nan is not a number, but before doing that, I will again create one more dictionary, D1. For example, if I am creating this dictionary here, then this becomes your D1. And now I am creating D2, but in D2 I am taking care that I am taking the keys as that I have used in D1. Okay, so D2 becomes this. Means in these two dictionaries I have used keys with same names. In D1 A and B is key, and in D2 A and B is key. So if I create here list of these two dictionaries by saying D1 comma D2, then this becomes like this. And if I use this L for creating a data frame L here, but was the error? We should write frame with F. So if I say DF, see, now it is giving 0 and 3 under A and 1 and 4 under B. So this is the exact example of creating a data frame with the use of list of dictionary. I am here explaining this topic again in Hindi. In this topic, we need to create a data frame. हमें क्या बनाना है? डाटा फ्रेम बनाना है. हमने पहले भी देखा है कि डाटा फ्रेम क्या है. डाटा फ्रेम एक टेबुलर स्ट्रक्चर है, और यू कैन से इट इज अ 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर. सो अगर डाटा फ्रेम बनाना है तो डाटा फ्रेम बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका आज हमने सीखना है. और वो क्या तरीका बोला है? डाटा फ्रेम किससे बनाना है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से. तो पहले तो डिक्शनरी पता होनी चाहिए हमें क्या है, और फिर पता होना चाहिए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या है. तो डिक्शनरी है ये. अगर मैं कोई डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ D1 इक्वल टू, हमें पता है कि डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमें करली ब्रैकेट यूज करनी है. सो डिक्शनरी होती है की एंड पेयर के की एंड वैल्यू के पेयर में. फर्स्ट है मेरी की, मैंने A यूज की, फिर उसकी वैल्यू लिखी है 1, फिर एक और की दी, उसकी वैल्यू लिख दी है 2 एंड करली ब्रैकेट क्लोज कर दी. मीन्स हमने एक यहाँ पे डिक्शनरी बना दी है. ओके, अब हमें क्या करना है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाना है. मीन्स एक लिस्ट ऐसी जिसके अंदर क्या है? डिक्शनरीज हैं. तो वो समझाने के लिए मैं एक और डिक्शनरी ले रही हूँ यहाँ पे, और वहां पे कहा अगेन A कॉलन, और इसकी वैल्यू अब मैंने दे दी है 3 एंड B कॉलन 4. तो D2 भी हमारी एक डिक्शनरी बन गई है दोबारा से. D2. अभी हमने क्या किया? एक डिक्शनरी D1 क्रिएट की और एक D2. अब हमने क्या क्रिएट करना है? एक लिस्ट क्रिएट करनी है इन दोनों डिक्शनरीज की हेल्प से. वो मैंने क्रिएट की L इक्वल्स टू, और लिस्ट हमेशा बनती है बिग ब्रैकेट में, तो मैंने लगाया बिग ब्रैकेट. और फिर उसमें क्या कहना है? डिक्शनरीज के नाम देने हैं. पहली डिक्शनरी का नाम दे दिया, दूसरी डिक्शनरी का नाम दे दिया. तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई है, और इसको आप चेक कर सकते हो बाय सेइंग टाइप L. ये एक बन गई लिस्ट. ठीक है. अब ये किस तरह की लिस्ट बनी है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी. एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर डिक्शनरीज हैं, मतलब इट इज अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. सो हमें अब क्या बनाना है? डाटा फ्रेम बनाना है इस लिस्ट को यूज करके. तो डाटा फ्रेम बनाने के लिए हमें पता है फंक्शन होता है pd डॉट डाटा फ्रेम,
और इंपोर्ट हमने कर ही लेना है पहले पांडास को, वो मैंने इससे प्रीवियस यहाँ पे किया था इंपोर्ट, ये इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर आपने कहना है यहाँ पे df इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम इन स्मॉल ब्रैकेट एंड उसमें कहा इस लिस्ट का नाम। और अब अगर आप चेक करेंगे df ये बन गया है हमारा, आप चेक कर सकते हो df की टाइप, दिस इज अ पांडास डाटा फ्रेम। और कैसे बना है, इसमें जो आपकी डिक्शनरीज की कीज थी ए बी, देखो सेम थी दोनों डिक्शनरी में, तो वो बन गया है अपने आप कॉलम का इंडेक्स और उन कॉलम के नीचे उनकी वैल्यूज आ गई हैं। और वैल्यूज क्या थी, जो आपकी की वैल्यूज थी। ए के अगेंस्ट हमने दो वैल्यूज दी थी 1 और 3, तो उसके नीचे 1 और 3 और बी के नीचे 2 और 4 आ गया यहाँ पे। सो ये एक सिंपल वे था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे डाटा फ्रेम क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ओके, अब मैंने एक एग्जांपल और दिया था अपने इंग्लिश वर्जन वाले में, जिसमें मैंने 2 डिक्शनरीज ली थी, बट वो दोनों डिक्शनरीज इस तरह से ली थी कि उन दोनों में कीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे D1 में AB ले ली और D2 में CD। तो अब अगर इसको यूज, इन दोनों डिक्शनरीज को यूज करके लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं आप और फिर उसका डाटा फ्रेम बना रहे हैं बाय सेइंग L, तो आपका DF इस तरह का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहली डिक्शनरी में जो की थी उसका कॉलम बन गया, फिर B का कॉलम बन गया, फिर C के लिए कॉलम बन गया, फिर D के लिए कॉलम बन गया। तो पहली रो में उसने जो फर्स्ट डिक्शनरीज में वैल्यूज थी वो डाल दी 1 और 0, बट C एंड D के लिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो जहां पर कोई वैल्यू उसको नहीं मिल रही है तो ऑटोमेटिक डाटा फ्रेम में नैन वैल्यूज आ जाती हैं उन जगह पर। नैन मीन्स नॉट अ नंबर, मीन्स कोई वैल्यू वहां पे नॉट अवेलेबल, यू कैन ऑल्सो से दैट वैल्यू अवेलेबल नहीं है उसके लिए। ऐसे ही सेकेंड डिक्शनरी में जो कीज हैं वो CD हैं, तो CD के अगेंस्ट उसने वैल्यूज दे दी हैं, बट AB के अगेंस्ट उसने वैल्यू नहीं दी है। ओके, अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ D1 और यहाँ पे कहा C और उसकी वैल्यू दे दी है 5, और फिर D2 हमने लिया यहाँ पे जिसमें एक लिया E और फिर कॉलन उसकी वैल्यू दे दी है 6। तो अब हमें पता है कि A, B, C इन तीनों में से सिर्फ C ही कॉमन है, तो C के अगेंस्ट दोनों वैल्यूज आएंगी। देखो C के नीचे 5 भी आ रही है, C के नीचे 3 भी आ रही है, बट D एंड E के लिए यहाँ पे नहीं आ रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्या सीखा है, एक डाटा फ्रेम को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। मीन्स पहले हमने डिक्शनरी बनाई, फिर उन डिक्शनरीज से लिस्ट बनाई और फिर उस लिस्ट से हमने क्या बनाया है, डाटा